Assalamu alaikum. This is Hifza Waheed. In the last video from Physics 9702 playlist, we have solved some past paper MCQ from first 5 chapters. In this video, we are going to discuss the solution of some structured questions from the same chapters as well, right? So let's get started. First of all, it says use an expression for work done in terms of force to show that the SI base unit of energy are this. First of all, let's just write the expression for work done. Work done is the product of force and displacement, right? In the direction of force. How can we derive the SI base unit of energy? First, we have force. Force is measured in newtons, right? But base unit may we should be writing kilograms into meters per second square. Then we have displacement. It is measured in the unit of length, that is meters. See, this right here is kilogram into meters square per second square. That is what we were to prove. Then it says the energy E stored in an electrical component is given by this equation. Use this equation and the information in part A, that is the unit of work done, to determine the SI base unit of C. First of all, since we are to determine the unit of C, let's rewrite this equation so that C becomes the subject of our equation. So I should be writing C equals Q square over 2 times energy. And energy is the form of work done. Your work done is the form of energy. So their units are interchangeable, right? Same units होते हैं. What can I do here? C के लिए unit find out करना है तो let's just put the SI base unit for all these physical quantities listed here. First of all, we have charge. Charge की जगह पर मुझे लिखना चाहिए coulomb, right? And मुझे उसका square लगा देना चाहिए because charge पे I can see a square here. लेकिन they've mentioned here base unit and I know very well that coulomb is not the base unit. आप जब 9 में भी फर्स्ट चैप्टर में बेस यूनिट की टेबल को जब स्टडी करते हैं तो आप उसमें पढ़ते हैं कि करंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी जिसका बेस यूनिट इज एम्पेयर, राइट? एंड टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी विद अ बेस यूनिट ऑफ सेकेंड्स, राइट? सो मैं कूलम नहीं लिख सकती. कूलम की जगह मुझे कोई एम्पेयर और सेकेंड के टर्म्स में कोई वैल्यू लिखनी है. अब वो वैल्यू क्या होनी चाहिए वो मुझे यहाँ से पता चलेगा. करंट इज चार्ज ओवर टाइम. So charge must be current into time. Base unit for current is ampere and time के लिए we have second. तो इसका मतलब है मैं ये लिख सकती हूँ कि coulomb is equivalent to product of ampere and second. तो यहाँ पर I should not be writing coulomb. Instead I'd write ampere into second. And then this 2 right here is a numerical value. Numbers do not have a unit or a dimension. So जब भी हम dimension या unit derive करते हैं तो हम numbers को ignore करते हैं, right? So इसकी जगह मैं कुछ भी नहीं लिखूंगी. And then we have energy जिसके लिए अभी हम part A में निकाल चुके हैं. Unit is kilogram into meters square per second square. मैं ये per second square यहाँ पर लिखूं या मैं इसको ऊपर shift करवा दूं, एक ही बात है, right? नेक्स्ट व्हाट आई कैन डू इज इस स्क्वायर को शिफ्ट करवा दें, एम्पेयर पर भी अप्लाई करें एंड देन सेकंड पर भी. विल राइट एम्पेयर स्क्वायर second square and then this second square as it is. Then we have kilogram into meters square in denominator. I can see second, same base here, right? Whenever same bases are being multiplied, the rule says just add their powers and write the base once. So I'll write second, this 2 and this 2. 2 plus 2, I'll write 4. And then we have this kilogram into meters square. So I can write this to be ampere square, second raised to the power 4, kilogram with power minus 1, and then there's m minus 2. This right here is the unit for this constant C. Then, measurement of a constant current in a wire are taken using an analog ammeter. For these measurements, describe one possible cause of random error. See, जहां पर भी ये किसी मीटर को मेंशन कर दें, be it एम मीटर, वोल्ट मीटर, जो सबसे कॉमन रैंडम एरर है आपके पास, इट इज गोइंग टू बी पैरेलैक्स एरर, राइट? आप कहें रीड जो मीटर है उसको रीड करने में
कुछ एरर है, मे बी डिफरेंट एंगल से रीडिंग उन्होंने रीड की, राइट? सो देयर इज सपोज टू बी अ पैरालेक्स एरर, देयर कैन बी अ पैरालेक्स एरर, राइट? एंड देन सिस्टमैटिक एरर मीटर्स के केस में या किसी भी खैर इंस्ट्रूमेंट को आप यूज कर रहे हो, तो वहां पर सिस्टमैटिक एरर में जीरो एरर इज दी वन जो आप लिखेंगे, राइट? Then we have a question here. It says state Newton's second law of motion. Newton's second law की basic तो जो हम पहले equation पढ़ते थे वो ये होती थी, right? तो जब हम momentum का concept देख लिया हमने, उसके बाद we got to know कि force is also rate of change of momentum. So जब ये आपसे कहते हैं कि state Newton's second law, we'll go with this one, right? So just write here that the rate of change of momentum is equal to the resultant force. Make sure to write the word resultant here. Then it says a delivery company suggests using a remote controlled aircraft to drop a parcel in the garden of a customer. When the aircraft is vertically above point P, that is at this point, on the ground, it releases the parcel with a velocity that is horizontal. Velocity is completely horizontal. इसका मतलब है मैं यहीं पर कह सकती हूँ कि ये जो velocity है v, this itself is the x component of velocity because there is no y component of velocity here. Clear? तो अगर कोई वेक्टर completely along y axis होता है, for suppose ये वेक्टर a है, right, and it is aligned completely along y axis, तो मैं कहूँगी वेक्टर a itself a का y component है, and इस केस में a का x component is 0. Same goes in this case. यहाँ पर it is pointing in horizontal direction, तो मैं कहूँगी v itself is the x component of velocity, y component of velocity is 0. Let's move forward. Then आपसे कह रहे हैं जो आपके पास velocity का magnitude है, it is 5.4 meters per second. Path of parcel is shown in this figure. Parcel takes a time of 0.81 seconds. Let's just write the data here. X component of velocity is 5.4 meters per second, and the time it took to cover this distance from P to Q, it is 0.81 seconds, right? Air resistance is negligible. इसका मतलब है हम कहेंगे horizontal direction में कोई force नहीं लग रही and vertical direction में सिर्फ और सिर्फ gravity की force लग रही है. Now on figure 2.1, draw an arrow from point X to show the direction of acceleration of the parcel when it is at that point. यानी जब point X पर है तो acceleration की direction बताएं. Of course it is directed vertically downward, right? फिर आपसे कह रहे हैं determine the height of the parcel above the ground when it is released. Height when it is released. See, height is the vertical distance, right? So to calculate the height, we are going to apply equation of motion. कौन सी equation of motion लगाऊं? वो जो accelerated motion पर applicable होती है या वो जो non accelerated यानी horizontal motion के लिए applicable होती है. फ्रिक्शन की एब्सेंस में हॉरिजॉन्टल मोशन तो नॉन एक्सेलरेटेड है, राइट? लेकिन वर्टिकल मोशन इज स्टिल एक्सेलरेटेड. मुझे वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है तो मैं वर्टिकल वाली इक्वेशन लगाऊंगी, एंड क्योंकि वर्टिकल मोशन एक्सेलरेटेड है तो मैं वो जो तीन इक्वेशंस है ना मेरे पास वेल नोन इक्वेशंस उनको यूज कर सकती हूँ. S is equals to initial velocity time plus half at square, क्योंकि वर्टिकल मोशन है तो आई कैन ऑल्सो राइट gt square here, राइट? मुझे क्या निकालना है? डिस्टेंस. इस केस में इट शुड बी वर्टिकल डिस्टेंस व्हिच इज हाइट. मुझे यहाँ क्या रखना है? इनिशियल वेलोसिटी. इट शुड बी vertical component of initial velocity, and it is obvious from this figure right here, right? कि initial velocity is horizontal, vertical component इसका कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर I'll write 0. Time was 0.81 seconds plus half gravity 9.81 times 0.81 square of this time. This will turn 0, and just put these values in your calculator and you will get to know the final value of height. It is 3.2 meters. Then in the next part, they are asking you to calculate the horizontal distance d between point P and Q, right?
That is, this is the distance that you are to calculate. See, horizontal motion, क्योंकि फ्रिक्शन हम इग्नोर कर चुके हैं, इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल मोशन में रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है ये वाली जो इक्वेशंस हैं एंड इसके साथ की बाकी की दो, 2as इक्वल्स वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर या v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये तीन इक्वेशंस मैं नहीं लगा सकती। दे आर ओनली एप्लीकेबल फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। बाकी जो एक इक्वेशन आई एम लेफ्ट विद इज s इक्वल्स ut, ये मैं लगा सकती हूँ हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। s in this case would be the horizontal distance which is range, जो आपको कैलकुलेट करनी है। u would be the horizontal velocity, right? Horizontal velocity ज़ाहिर constant है and they've already given their value, it was 5.4. Yes, so it is 5.4 and then time is given to be 0.81 seconds. You will put these values in your calculator and you will get to know the range, that is the horizontal distance between point P and point Q. If you are thinking कि मैंने यहाँ पर अगर velocity का horizontal component था तो हम तो एक आध equations देखते हैं जिसमें हम इस u के बजाय u cos theta रखते हैं, राइट। u cos theta आप इसलिए रखते थे बिकॉज वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता था। यहाँ पर आपको वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज इट वाज ऑलरेडी अलोंग हॉरिजॉन्टल। Then they are saying another parcel is accidentally released from rest by a different aircraft when it is hovering at a great height above the ground. Air resistance is now significant. इसका मतलब है ड्रैग को इग्नोर नहीं कर सकते आप। On figure, draw arrows to show the directions of the forces acting on the parcel as it falls vertically downward. Label each arrow with the name of the force. So this right here is the parcel. It is moving downward. जिस भी direction में ये move कर रहा होता है, resistance negligible होती या significant होती, weight of the parcel will act vertically downward, right? And then now that air resistance is significant, तो जाहिर है air drag ऑब्जेक्ट के डाउनवर्ड मोशन को अपोज करेगा, राइट इसका मतलब है ड्रैग फोर्स जो आप बनाएंगे यू लेबल इट वर्टिकली अपवर्ड, राइट एयर रेजिस्टेंस और मे बी ड्रैग एंड यू आर गुड टू गो, राइट। Then, by considering the forces acting on the parcel, state and explain the variation, if any, of the acceleration of parcel as it moves downward before it reaches constant velocity, constant speed, that is the terminal speed. You should be writing weight, that is the downward force of gravity is constant, whereas drag keeps on increasing with the velocity, which of course is increasing under the influence of gravitational acceleration, right? And as a result, the resultant force decreases because these two forces are opposite to each other, weight and drag, right? And hence, acceleration decreases till it reaches zero when drag becomes equal to the weight of the body. That is, object reaches terminal speed. लास्ट वीडियो में भी हमने एयर ड्रॉपलेट के लिए एक रेन ड्रॉप के लिए बल्कि टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखा था, राइट। दी सेम अप्लाइज हियर एज वेल। ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पर है, डाउनवर्ड वेट तो इसका कांस्टेंट है बट स्पीड जीरो होने की वजह से ड्रैग जीरो है। ग्रेविटी की वजह से इट वुड कीप ऑन मूविंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड वेट तो फिर भी कांस्टेंट रहेगा बट वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी एंड उसकी वजह से ड्रैग भी इंक्रीज होने लगेगा।
इन इट्स डाउनवर्ड मोशन एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ड्रैग इंक्रीज होते होते बिल्कुल वेट के बराबर हो गया, बट सिंस दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन द रिजल्टेंट फोर्स विल बिकम जीरो. फोर्स जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो, change in velocity is zero, velocity of object will become constant. This constant velocity is called terminal velocity, right? I think it's enough for 3 marks. Then describe the energy conversion that occurs when the parcel is falling through the air at constant terminal speed. वैसे तो हम ये कहते हैं कि जो पार्सल है उसकी अर्थ से सेपरेशन कम होती जा रही है, सी एम जी एच कम हो रहा है, इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज कर रही है, राइट? हम इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये कहते हैं जब ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो उसकी किनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, लेकिन जाहिर है हर सिचुएशन में ये वाला पॉइंट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता. जैसे इस सिचुएशन में सी नाउ दे हैव मेंशन दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड तो अभी भी आ रहा है, इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी तो अभी भी कम हो रही है, लेकिन क्योंकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब है किनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, किनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही बिकॉज किनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर. मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी भी अब इन्होंने कह दिया कांस्टेंट है, इसका मतलब है किनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट है. सो ये जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, एनर्जी तो कंजर्व रहती है, तो ये डिक्रीज किसी ना किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी के इंक्रीज में कन्वर्ट हो रहा होगा, राइट? सो पोटेंशियल एनर्जी कम होकर किस में कन्वर्ट हो रही है? इन दिस केस वी से दैट इट इज कन्वर्टिंग इन मे बी थर्मल एनर्जी. Okay, then we have another question from moment of forces and vector resolution as well. It says state two conditions for an object to be in equilibrium. इन्होंने नहीं बताया ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेगा या रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें, सो हम जनरल कंसिडर करेंगे, राइट? दोनों कंडीशंस लिखेंगे. Sum of all the forces acting on the object in any direction should be zero. Of course आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर. And sum of all the torques on the object about any point should also equal zero. Right? ये दो basic conditions है for the object to be in equilibrium. This is the condition for translational equilibrium and this right here is the condition for rotational equilibrium. Then sphere of weight 2.4 Newton is suspended by a wire from a fixed point P. A horizontal string is used to hold the sphere in equilibrium. This is what we should not ignore here. अभी equilibrium की एक condition पढ़ के आना, इसका मतलब है sum of all forces must equal zero and sum of all torques should equal zero, right? And आपसे कह रहे हैं the sphere is held in equilibrium with the wire at an angle of 53 degree to the horizontal as shown in this figure. Calculate the tension in the wire. See, मुझे tension का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, ठीक है? टेंशन यहाँ पर एक रिजल्टेंट फोर्स है, अगर मुझे टेंशन का कोई भी एक कंपोनेंट पता होता तो इस थीटा की मदद से मैं टेंशन की वैल्यू निकाल सकती थी, बट दिस इज नॉट द केस हियर. मुझे इसका कोई कंपोनेंट भी नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ एक एंगल बताया है एंड मुझे कह रहे हैं कि टेंशन का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें. यहाँ पर मुझे इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है. सी, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है फोर्सेस का सम जीरो आएगा. सी, ऑब्जेक्ट पर डाउनवर्ड फोर्स लग रही है उसके बाद भी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है यकीनन एक अपवर्ड फोर्स भी होगी जो एग्जैक्टली इस डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगी. इन दिस केस द अपवर्ड फोर्स इज द कंपोनेंट ऑफ टेंशन एंड इसी तरह टेंशन को एक दूसरे इसके दूसरे कंपोनेंट में भी रिजॉल्व करें. दिस राइट हियर इज द एक्स कंपोनेंट, राइट? ऑब्जेक्ट पर सी लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसके बाद भी ये इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब है इस पर राइट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रही है एंड इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है. तो यहाँ पर आई कैन राइट, अगर मैं इसको एक्स कंपोनेंट ऑफ टेंशन कहूँ दैट इज मैं इसको टी एक्स का नाम दूं एंड मैं इसको टी वाई का नाम दूं, तो मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन को जहन में रखते हुए ये कह सकती हूँ कि यकीनन फिर F इज इक्वल्स टू टी एक्स एंड weight is equals to Ty, right? Weight is already given to be 2.4 Newton. अगर मुझे ये टेंशन का y component नहीं भी पता तो it is obvious कि of course it is also
2.4 न्यूटन. नाउ दैट आई नो अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और मुझे एंगल भी पता है, तो मैं रिजल्टेंट वैल्यू निकाल सकती हूँ. रिमेंबर हम पढ़ते थे कि अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर पता है, अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर, एंगल या कंपोनेंट, इनमें से कोई भी दो बातें पता है, तो आप तीसरी चीज आराम से निकाल सकते हैं, राइट. सो यहाँ पर भी आप ये करेंगे. आपको ये वाला कंपोनेंट पता है, राइट. आप एक ट्राइंगल बनाएं. दिस राइट हियर इज द ट्राइंगल, राइट. इसको मैं यहीं पर कॉपी कर लेती हूँ. सी, ये है इसका y कंपोनेंट. दिस वाज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टेंशन एंड ये आप टेंशन का x कंपोनेंट बना सकते हैं, ठीक है. इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द डायग्राम दैट दिस एंगल इज 53, लेकिन ये जो टोटल एंगल है ये 90 है, राइट. तो इसका मतलब है कि ये जो रिमेनिंग एंगल होगा, ये जो इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल है, ये यकीनन 37 डिग्री होगा. सो दैट 37 प्लस 53 could give you 90 degree. This makes me write कि this angle right here is 37 degree. Clear? Next step, triangle को label कर लें. ये एंगल 90 डिग्री, ऑफ कोर्स 90 डिग्री, और जो भी आपने इंटीरियर एंगल मार्क किया होता है, इसके दरमियान वाली जो साइड होती है, इसको हम हमेशा बेस का नाम देते हैं. द अदर वन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, एंड जो टिल्टेड होती है उसको हम हाइपोटेनस का नाम देते हैं. हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें इस टी की वैल्यू पता चले, राइट. फिलहाल मुझे क्या पता है, मुझे टी वाई की वैल्यू पता है. इन अदर वर्ड्स, मैं हाइपोटेनस कैलकुलेट करना चाहती हूँ एंड मुझे बेस पता है, इट इज 2.4 न्यूटन. कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो हाइपोटेनस और बेस को रिलेट करता है? इट इज कॉस थीटा. कॉस थीटा इक्वल्स base over hypotenuse. Therefore, base should equal hypotenuse into cos theta. Hypotenuse, okay, हमें तो hypotenuse calculate करना था. So I should be writing hypotenuse equal base divided by cos theta. Base is 2.4 Newton. Cos of this interior angle, which is 37 degree. Put these values in your calculator and you will get to know what is this hypotenuse, that is capital T, यानी टेंशन की वैल्यू क्या है. You will get 3 Newton here, right? So the value of tension is 3 Newton. Next, the force F exerted by the string on the sphere. हमने ऊपर ही जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन पढ़े थे तो हमने यहीं पर स्टेट कर दिया था कि अब इस वाली टेंशन को तो आप इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर चुके हैं. So, आप कह रहे हैं टोटल 4 फोर्सेस हैं. These two are opposite, so they must be equal. And this F and this Tx, they are opposite, so they must be equal, right? So मुझे F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एक्चुअली मैं क्या करूंगी, मैं Tx की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगी, राइट. एंड मुझे पता है कि वो F के ही बराबर है. So I'll write F equals Tx. या तो आप फिर उसी पिक्चर में से ट्राइंगल बनाएं, साइड देखें, फिर देखें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको मैच करता है एंड उससे अपना फाइनल आंसर निकालें. चलें इसी सेम प्रोसीजर को फॉलो कर लेते हैं, ठीक है. सो मुझे स्टेप्स पता है, उसी सेम ट्राइंगल को मैं यहाँ पर कॉपी कर रही हूँ. दिस वाज टेंशन इन स्ट्रिंग. इसका ये कंपोनेंट है Tx, ये मुझे कैलकुलेट करना है. दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट एंड ये जो इंटीरियर एंगल है ये मेरे पास क्या आ रहा है, इट इज 53, राइट, बिकॉज इस बार मैंने ये वाला ट्राइंगल कंसिडर किया, ठीक है. सो दिस इंटीरियर एंगल राइट हियर इज 53. इट इज ऑब्वियस कि ये एंगल 90 है. लेबल कैसे करते हैं, हमेशा 90 डिग्री एंड इस इंटीरियर एंगल वाली साइड को आप बेस का नाम दें. दिस राइट हियर इज परपेंडिकुलर एंड दिस tilted one is hypotenuse. Again, it is obvious from this figure कि आपको बेस कैलकुलेट करनी है एंड आपको परपेंडिकुलर गिवन है. इस इंफॉर्मेशन को फिलहाल हम नहीं यूज करें, राइट. आपको बेस कैलकुलेट करनी है एंड आपको टेंशन गिवन है. या चलें परपेंडिकुलर वाला भी यूज कर लें, इट वुड वर्क. Let's just put these values. C, T we just calculated in this previous part, it is 3. मुझे ये पता है. बेस मुझे कैलकुलेट करनी है. हाइपोटेनस एंड बेस, दे आर रिलेटेड विद cos थीटा. cos थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेनस. बेस आपको कैलकुलेट करनी है, so just rewrite this equation.
base equals hypotenuse into cos theta. Hypotenuse 3.0. Cos of the interior angle of this triangle, it is 53. Put these values in your calculator. Was it 53 or 57? 53, right? Just put these values in your calculator and you will get to know the x component of tension, या जिसको हम F force का यहाँ पर नाम दे रहे हैं. It's 1.8 Newton. Then the wire has a circular cross section of diameter 0.50 millimeter. Foreign standard में ले जाएं, which is 0.5 exponent -3, right? मिली की जगह -3. Determine the stress in the wire. मुझे डायमीटर पता है. स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट? वायर के लिए आपने स्ट्रेस निकालना है तो आप फोर्स कौन सी लगाएंगे? ऑफ कोर्स फोर्स ऑफ टेंशन व्हिच इज 3.0. एरिया, किसी भी वायर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. यहाँ पर मुझे डायमीटर गिवन है. डायमीटर को हमें पता है जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो रेडियस आ जाता है. तो you'll write 0.25 exponent -3 meters as the radius, right? Just put these values. 3 over pi 0.25 exponent -3. Do not forget to place this square here. Put these values in your calculator and you'll get to know the value of stress. And the formula itself suggests that stress का अपना unit क्या होता है? Newton per meter square, which is nothing but pascals. You'll get 1.5 exponent 7 pascals here. Then this is also a very interesting part of this question. आपसे कह रहे हैं the string is disconnected from the sphere in B. Sphere then swings from its initial rest position A as illustrated in this figure. Sphere reaches maximum speed when it is at bottom of the swing at position B. The distance between P and the center of the sphere is 75 centimeters. Air resistance is negligible and energy losses at P are negligible. Show that the vertical distance h, that is the distance between point A and point B, is 15 centimeters. मुझे ये distance find out करना है. ये distance is given to be 75 centimeters, which is the length of thread, I'd say, right? वैसे तो स्फीयर के सेंटर तक है. See, आपको यहाँ से समझ में आएगा ये स्प्रिंग अभी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर था, ये स्ट्रिंग, राइट? इन इट्स वे जब ये वापस अपनी मेन पोजीशन पर आएगा तो दिस लेंथ इटसेल्फ इज आल्सो 75 सेंटीमीटर्स, राइट? बिकॉज ये वही थ्रेड की लेंथ है ना, अटैच टू दी स्फीयर, दी सेम स्फीयर, सो इट इज आल्सो 75 सेंटीमीटर्स. मुझे क्या निकालना है? मुझे ये वाली हाइट जो है ये कैलकुलेट करनी है. बट राइट नाउ आई कैन क्लियरली सी अ राइट एंगल ट्राइंगल हियर, दिस वन, राइट? तो मैं क्या करूंगी? मुझे ये टोटल लेंथ पता है 75 सेंटीमीटर्स. ये लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है. अगर मैं ये वाली लेंथ फाइंड आउट कर लूं जो कि इस राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है, तो मैं टोटल 75 सेंटीमीटर्स में से इस लेंथ को, लेट्स कॉल इट एल डैश, सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा ये रिमेनिंग लेंथ विच इज द हाइट, ये क्या है, राइट? तो मेरा भी गोल है कि मैं ये वाली लेंथ फाइंड आउट करूं. इसके लिए यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे ट्राइंगल. We have this side as 75 centimeters. This angle right here is 53 degree. And ये वाली साइड जो है मुझे कैलकुलेट करनी है. And this angle of course is 90 degree. ये साइड मुझे कैलकुलेट करनी है, राइट? पहले लेबल कर लेते हैं कि जो गिवन साइड है वो कौन सी है और जो रिक्वायर्ड है वो कौन सी है. इट इज ऑब्वियस, इट इज हाइपोटेनस. गिवन एंगल एंड परपेंडिकुलर के दरमियान वाली साइड बेस, देन दिस मस्ट बी परपेंडिकुलर. सी, हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है. कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है व्हिच यू कैन थिंक ऑफ राइट नाउ? इट इज sin थीटा. Sin theta is perpendicular over hypotenuse. So perpendicular must equal hypotenuse into sin theta. Hypotenuse is 75 centimeters. It is up to you. आप हाइपोटेनस की वैल्यू सेंटीमीटर्स में रखें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू सेंटीमीटर्स में आ जाएगी, बिकॉज साइन थीटा का अपना कोई यूनिट नहीं है. आप यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू को मीटर्स में कन्वर्ट करके रख दें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू मीटर्स में आ जाएगी,
राइट. लेट्स जस्ट गो विद सेंटीमीटर्स ही, बिकॉज इन्होंने 15 सेंटीमीटर ही प्रूफ करने को कहा है, राइट. सो hypotenuse is 75 centimeters. Sine of the angle, this angle is 53 degree. Put these values in your calculator and you'll get 60 centimeters as your final answer, right? But just keep this thing in mind, this 60 centimeter is not this height. This 60 centimeter is this height, right? This side of triangle. So अब अगर मुझे पता है कि ये total 60 centimeter है एंड ये वाली जो टोटल लेंथ है इट इज 75 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है यकीनन ये जो लेंथ है इट इज 15 सेंटीमीटर. सो दैट दिस 15 प्लस 60 मेक्स द टोटल लेंथ टू बी 75 सेंटीमीटर्स. तो आप यहाँ पर ये लेंथ निकाल कर बताएंगे एंड देन यूल राइट 75 सेंटीमीटर्स माइनस 60. दिस विल गिव यू 15 सेंटीमीटर्स विच इज समथिंग जो आपने यहाँ पर प्रूफ करना था. Then calculate the change in gravitational potential energy of the sphere as it moves from point A to point B. Gravitational potential energy, right? Energy is the form of work done, right? Work done is force into displacement. आप चाहें तो ये कॉन्सेप्ट यूज करें और फिर आप कहें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है तो हम फोर्स रखेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच इज mg, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने रखनी है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट. फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है तो जो आप डिस्प्लेसमेंट रखेंगे वो भी वर्टिकल ही डिस्प्लेसमेंट रखेंगे, विच इन दिस केस ए से बी तक आने में इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पूछा है ना, तो आप ए से बी तक की वर्टिकल सेपरेशन लिखेंगे. आपने ये वाला डिस्टेंस नहीं निकालने की कोशिश करनी. ग्रेविटी इज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो आपने सेपरेशन भी वर्टिकल ही रखनी है. एंड दिस सेपरेशन अभी हम पिछले पार्ट में निकाल चुके हैं, इट वाज 15 सेंटीमीटर्स. बट कीप दिस थिंग इन माइंड, यहाँ पर आप अपना फाइनल आंसर एनर्जी के स्टैंडर्ड यूनिट में दे रहे हैं विच इज जूल. तो अब यू आर बाउंड टू प्लेस द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द स्टैंडर्ड यूनिट विच इज सेंटीमीटर्स, राइट. सो यहाँ पर जो आप हाइट रखेंगे इट शुड नॉट बी 15 सेंटीमीटर, इट शुड बी 0.15 मीटर. ग्रेविटी इन इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज 9.81. एंड देन मास क्या गिवन है, लेट्स जस्ट सी मास ऑफ a sphere of weight 24 न्यूटन. सी इन्होंने डायरेक्टली वेट दे दिया, वेट इटसेल्फ इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी, तो मैं ये अलग से ग्रेविटी नहीं प्लेस करूंगी, राइट. इन दोनों की जगह मिलाकर आई प्लेस 24 न्यूटन. वाज इट 24 or 2.4? Okay, it was 2.4 newtons, right? So just put this 2.4 newton and then multiply it with 0.15. आपको change in gravitational potential energy पता चल जाएगा in the standard unit of joules. This turns out to be 0.36 joules. अब आपसे कह रहे हैं ये जो आपने अभी आंसर निकाला है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, आप इसको यूज करके आप ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालें एट पॉइंट बी. जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर पॉइंट ए पर मौजूद था तो इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी. जब ऑब्जेक्ट बी पर आया है तो ऊपर इन्होंने एक पॉइंट में मेंशन किया था यहाँ ऑब्जेक्ट की स्पीड मैक्सिमम है. स्पीड मैक्सिमम यानी ऑब्जेक्ट की किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, राइट. यहाँ पर फ्रिक्शन को हमने इग्नोर किया, इन्होंने कहा सारे एनर्जी लॉसेस को आप इग्नोर कर दें, राइट. इसका मतलब है ये जो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है ए से बी तक आने में, ये पोटेंशियल एनर्जी हीट की फॉर्म में या इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में कहीं पर नहीं जा रही, ये पोटेंशियल एनर्जी किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही, राइट. सो आप लिखेंगे कंजर्वेशन को फॉलो करते हुए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज 0.36 जूल्स, इट मस्ट इक्वल द चेंज इन किनेटिक एनर्जी. सारी सारी पोटेंशियल एनर्जी अब किनेटिक में कन्वर्ट हो गई है, जो डिफरेंस आया है वो, राइट. सो दिस चेंज इन किनेटिक एनर्जी इज हाफ m चेंज इन वेलोसिटी का स्क्वायर. बट सी क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना पॉइंट ए, इस पे इन्होंने कहा था ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो हो जाती है, राइट. सो इसका मतलब है इस पॉइंट पे इसकी किनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी. तो पॉइंट बी पे जो किनेटिक एनर्जी है दिस इटसेल्फ इज द चेंज इन किनेटिक एनर्जी बिकॉज दिस वैल्यू माइनस जीरो विल गिव यू दिस वैल्यू एज इट इज, राइट. सो आप किनेटिक एनर्जी की जगह लिखेंगे हाफ m v स्क्वायर 36 जूल्स. 2 यहाँ डिवाइड हो रहा था वहां जाकर मल्टीप्लाई कर दें
m यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था v के साथ, दूसरी तरफ लाकर आप डिवाइड कर दें, but this would give you the equation of v square. हमें तो v square की इक्वेशन नहीं निकालनी, हमें तो v के लिए निकालना था, तो बस आप रूट ले लें एंड बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ भी ले लें, राइट। अब मुझे मास की वैल्यू यहाँ पर प्लेस करनी है। मास की वैल्यू मुझे डायरेक्टली नहीं पता, बट ठीक है, यहाँ पर वेट पता है ना। वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी, सो मास should be weight divided by gravity, right? यहाँ से आप mass calculate करें, उसे इस formula में place करें and put this sequence in your calculator and you should be able to calculate the speed in its standard unit, that is meters per second. In doing so, you will get 1.7 meters per second. That is the speed of ball at point B. Okay, I think let's just end this lecture here. We'll inshallah cover the remaining questions in next lecture. Till then, Allah Hafiz.